Our today's topic is immunohistochemistry, and first of all, we will discuss its introduction. Immunohistochemistry involves anatomical, immunological, and biochemical techniques for identification of various cellular components when there is interaction of antigens with antibodies, and those antibodies which are labeled with some tags. For example, a fluorescent tag or some other chemiluminescent tag or some other tag. तो हम उस टैग को यूज़ करते हुए सेल्स के अंदर, टिश्यूज़ के अंदर जो डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं. चूँकि इसमें इम्यूनोलॉजिकल जो पैरामीटर्स होते हैं वो भी यूज़ होते हैं, बायोकेमिकल भी यूज़ होते हैं, एनाटॉमिकल भी यूज़. सो इट इज़ एनाटॉमिकल, immunological and biochemical technique for identification of different components. Antigen-antibody complex, which is formed, that can be visualized by conjugating with an enzyme such as peroxidase, and this enzyme catalyzes a color-producing reaction, or by tagging with some fluorophore, which produce excitations, which produce different types of radiations when excited by certain radiations. This technique was started in 1941 by Kunz when he used this technique for fluorescent labeling of different biomolecules. Then, with this technique, it is possible to visualize the distribution and location of cellular components within cells as compared with the surrounding tissues in the sample. So, जो cells के जो different components होते हैं उनको हम identify करते हैं उनके जो surrounding है उसके context में, उसके हिसाब से. And immunohistochemistry may reveal abnormal processes and changes in the stained tissue sample. So whatever changes takes place in the cells, which may be some abnormal processes or some other process, they are visible. It is possible to reveal those changes. Similarly, it helps in the identification of a tumor, whether it is a benign one or it is malignant one, or even it is possible to see the stage of the tumor कि वो advanced stage पे है, अर्ली स्टेज पे है. ज़ाहिर है उसके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, डिफरेंट मार्कर्स होते हैं, जिसकी बुनियाद पे हम ये कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये जो ट्यूमर है ये एडवांस स्टेज का है या अर्ली स्टेज का है. इस तरह हम ये भी, और इसके साथ साथ कि क्या वो बेनाइन ट्यूमर है या मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इसकी बेस के ऊपर, डिफरेंट मार्कर्स की स्टेनिंग की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं. एंड दिस टेक्निक हैज़ बिकम अ वाइडली यूज्ड टेक्निक इन मेडिकल एंड क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स. डायग्राम में देख सकते हैं, खासतौर पे जो नीचे डायग्राम है इसमें रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंट जो सेक्शंस के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, सेल्स के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो बड़े खूबसूरत कलर्स में देखे जा सकते हैं. ग्रीन कलर में अलग हैं, रेड कलर में अलग हैं. सो दिस इज sort of immunological immunofluorescent staining. It also helps in localization of biomarkers in the cells and tissues in a sample. Main steps जो immunohistochemistry में involve होते हैं उसमें conjugation of antibodies है, इसी तरह tissue collection है, then there is sectioning of tissues, then detection of the signal, and then there is microscopy. ज़ाहिर है हम immunohistochemistry की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले कि हम एंटीबॉडीज़ जो यहाँ यूज़ करते हैं उनको कैसे लेबल किया जाता है. तो एक फ्लोरोफोर या कोई और सब्सटेंस जो है वो एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड की जाती है. सो दिस इज लेबलिंग ऑफ द एंटीबॉडीज़ और कॉन्जुगेशन ऑफ द एंटीबॉडीज़. देन देयर इज टिश्यू कलेक्शन, जो हम ऑर्गन्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग्स में से जो सैंपल लेते हैं बाय डिफरेंट मेथड, हम वो डिटेल में डिस्कस करेंगे. फिर उस टिश्यू को, उस जो भी ऑर्गन होता है उसका जो पोर्शन होता है उसको फिक्स किया जाता है ताकि उसमें डिकम्पोजिशन ना हो. फिर उसके बाद एक ख़ास प्रोसीजर के बाद उसके सेक्शंस बनाए जाते हैं और सेक्शंस के बाद फिर उसको हम स्टेन करके
उसको फिर माइक्रोस्कोपी के जरिए ऑब्जर्व करते हैं. So there is detection of labels as well. Tissues may be examined by simple microscopy or even by fluorescent microscopy and even by some other methods as well. इसकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस हम इस इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री में यूज़ कर सकते हैं, और ये जो वेरिएशन होती हैं दे डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ द स्पेसिमेन विच इज़ बीइंग स्टडीड एंड द डिग्री ऑफ सेंसिटिविटी विच इज़ रिक्वायर्ड. ज़ाहिर है अगर हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी हमें चाहिए होती है तो हम कन्फोकल माइक्रोस्कोप यूज़ कर सकते हैं. कम सेंसिटिविटी अगर चाहिए तो हम इसमें इम्यूनोफ्लोरेसेंट जो स्टेनिंग है सिंपल वो यूज़ कर सकते हैं. इन द सेम वे अगर हमें सिंपल माइक्रोस्कोपी चाहिए होती है तो अकॉर्डिंगली हम सिंपल माइक्रोस्कोपी भी यूज़ कर सकते हैं. सो इस तरह हम इसको यूज़ करके हुए हम डिफरेंट स्पेसिमेंस को उसकी एग्जैक्ट लोकेशन में डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए स्टडी कर सकते हैं.